وزیر اعظم شہباز شریف اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فون پر رابطہ، مجموعی قومی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ محمد شہباز شریف کی عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد۔ سندھ کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے، عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات کا اہم حصہ ہے: وزیر اعظم۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یو اے ای کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کو ٹیلی فون۔ دو طرفہ تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر محمد بن زائد ال نہیان کا پاکستان کے اقتصادی اور ترقیاتی اقدامات کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ پاکستان اور ایران ہمسایوں کی حیثیت سے تجارت میں اضافے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرحدی سلامتی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزید قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ تعلقات کو مضبوط بنانے اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا وانا اور ڈی آئی خان کا دورہ، سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید کی ادائیگی، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت، جوانوں کی غیر متزلزل لگن، قوم کی مثالی خدمت کی تعریف۔ امن و استحکام کے لیے جدوجہد کامیابی کی بنیاد ہے، ملک کی دفاع کے لیے فوجی جوانوں کا عزم قابل فخر ہے: آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ عید الفطر کا دوسرا روز، کل کے میزبان آج کے مہمان، شہریوں کا پارکوں کا بھی رخ، تفریح کے لیے مختلف پروگرامز، موج مستی کے پلان تیار، تفریحی مقامات پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم، عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,85,902 تک پہنچ گئی۔ خصوصی سہولت کونسل کے زیر اہتمام سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات۔ 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد ہوگا۔ معدنی شعبے کی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات زیر غور آئیں گے۔ قومی معدنی پالیسی کا بھی اجرا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شیخوپورہ کا دورہ، صفائی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ستھرا پنجاب پروگرام پورے صوبے میں کامیابی سے جاری ہے، اس اقدام سے آلودگی پر قابو پانے میں بہت مدد ملی ہے: صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری۔ میانمار میں ہولناک زلزلے سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، سینکڑوں تاحال لاپتہ۔ بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر امدادی سامان آج روانہ کیا جا رہا ہے۔ 70 ٹن امدادی سامان میں ٹینٹ، ترپالیں، کمبل، ادویات اور راشن شامل۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری، 8 افراد شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، 12 فلسطینی گرفتار۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی غزہ کے شہر رفح کو فوری خالی کرنے کا حکم۔ لبنان پر اسرائیل کی تازہ بمباری، 3 افراد شہید۔ لبنانی صدر کی جانب سے اسرائیلی حملے کی مذمت، عالمی برادری لبنان کی علاقائی خود مختاری کی حمایت کرے: لبنانی صدر۔ امریکی فوج کے یمن کے مختلف علاقوں پر مزید فضائی حملے، دارالحکومت صنعا اور سعدہ میں مختلف علاقوں پر 15 سے زائد حملے۔ حملوں میں حوثیوں کے زیر کنٹرول الدلیمی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیاروں کی مسلسل پرواز جاری، شہر کا ایک بڑا حصہ بجلی سے محروم۔ جب تک یمن کے حوثیوں کی جانب سے جہازوں پر حملے نہیں رکتے، بمباری جاری رہے گی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ یونان میں حالیہ موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، بڑے پیمانے پر نقصان۔ پاروس میں موسلادھار بارش گاڑیوں کو بہا کر سمندر میں لے گئی، شاہراہوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر، متاثرہ علاقے کے رہائشیوں کو گاڑیوں کے سفر پر پابندی عائد۔
पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज दूसरा मैच अलग सुबह 3 बजे से हैमिल्टन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। नेपियर में पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 73 रन से कामयाबी समेटी थी। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर न्यूजीलैंड से कौमी क्रिकेटर्स का पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद। क्रिकेटर की ज़रूरतमंदों और नादार तबके को भी ईद की खुशियों में शामिल करने की अपील। मेरी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से अहले वतन को ईद बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस और ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। शायकीन क्रिकेट की इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। PSL 10वें एडिशन के आगाज में सिर्फ 10 रोज बाकी। ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। ऑफिशियल तराने में मारूफ गुलकार अली जफर अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। अब्रारुल हक, नताशा बेग और रैपर तलहा अंजुम भी फन का मुजाहरा करेंगे। और फ्रांस में बिग एयर काइट वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट 24 मर्द और 12 खातून के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। ब्राजील की मकाइली सोल की पहली पोजीशन, 8वीं मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। मर्दों में इटली के आंद्रिया प्रिंसिपी पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद स्पेन के लोरेंजो का साथी टाइटल के हकदार करार पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और सूबे के अवाम के लिए ईद उल फितर के पुरमसरत त्यौहार पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे की अवाम विफाक के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूधाबी के हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, अमाराती शाही खानदान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने UAE की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने के पुख्ता अज़्म का इआदा किया और पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की देरीना हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भी वज़ीर आज़म को गर्मजोशी से ईद की मुबारकबाद दी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। गुफ्तगू में बाहमी ताउन को बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास से। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सियाहत में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश से एक सकाफती वफ्द को पाकिस्तान के दौरे पर भेजने की तजवीज़ भी दी। वफ्द में पुराने और नए फनकार बिलखुसूस लेजेंड अदाकारा रूना लैला भी शामिल हों।
वजीर आजम ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। मलेशिया के वजीर आजम दातुश्री अनवर इब्राहिम और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया और ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया गया। अनवर इब्राहिम ने मई में शहबाज शरीफ के मुतवक्के दौरा कोलालमपुर पर दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दौरे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। वजीर आजम ने कहा कि दौरा दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगा। मलेशिया के वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर, सुप्रीम लीडर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क दो तरफा तिजारत बढ़ाकर फायदा उठा सकते हैं। सरहदी सलामती जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए भी करीबी ताउन की जरूरत है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरैन के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में वजीर आजम ने बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने मुख्तलिफ शोबों में खुशगवार ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए बहरैन में मौजूद पाकिस्तानी बरादरी की मेजबानी पर बहरैन के बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बहरैन के बादशाह ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरैन के बादशाह को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमरत तोकयोव और अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। ज़राअत, मईशत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद दोस्त से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर और अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा को भी ईद की मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दो तरफा ताल्लुकात पर रफ्तार को बरकरार रखने के लिए आला सतह तबादले जारी रखने पर जोर दिया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में मगरबी सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल फित्र मनाई। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद की नमाज अदा की और वतन अजीज में पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने फौजी अफसरों और जवानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कौम के लिए आपकी गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और मिसाली खिदमात नहायत काबिल सताइश हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के शानदार किरदार को सराहते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मुसल्लह अफवाज और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमराह दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। फॉर्मेशंस की अनथक कोशिश का एतराफ़ करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि क़याम अमन और पायदार इस्तेहकाम के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियाँ हम सब के लिए मशअल राह हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मगरबी सरहद आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की भरपूर मावनत से रवा माह की 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। फोरम का बुनियादी मकसद मादनी शोबे की तरक्की समेत मुल्क में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी की राहें हमवार करना है। पहले रोज़ कानकनी में तरक्की, गवर्नेंस, ताउन और मुस्तहकम सप्लाई चेन्स के मौजू पर बातचीत होगी। इस अहम मौके पर पाकिस्तान में मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके समेत पाकिस्तान की कौमी मादनी पॉलिसी की रूनुमाई भी की जाएगी। फोरम के दौरान रेकोडिक मंसूबे की पेशरफ के जायजे समेत मुल्की मईशत पर असरात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। SIFC की मावनत से रेकोडिक मंसूबे की तकमील से मुल्की मईशत को मजबूती मिलेगी और मकामी रोजगार के मौके पैदा होंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की बदौलत पाक बरामदात में खातिर खा इजाफा हो गया है, जिससे माशी तरक्की की राहें हमवार हो गई हैं। चीन को तिल के बीजों की बरामदात में 179% इजाफा हुआ और बरामदात $28 मिलियन तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म के बरामदी तरक्की विजन के मुताबिक पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री आलमी मार्केट में कदम जमाने को तैयार है। मारूफ कंपनी होंडा ने 40 होंडा सिटी गाड़ियों की पहली खेप जापान बरामद कर दी है। रवा माली साल के पहले 8 माह में नॉन टेक्सटाइल बरामदात 2.3% इजाफे के साथ $9.8 अरब तक पहुँच गई। पेट्रोलियम खाम तेल की बरामदात में 100%, सीमेंट 26% और जेवरात 66% की बरामदी नमू के साथ नुमाया पेशरफ्त हुई है। रवा साल पोटाशियम सल्फेट खाद की बरामदात $7 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान है।
और सलमा, ईद हो, खाना पीना और सैर सपाटा ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता, और इसके लिए ईद के दूसरे दिन भी शहरियों का खाने पीने और सैर सपाटे का सिलसिला जारी है। बच्चे बड़े सभी अपने प्यारों के साथ ईद मिलने के लिए जा रहे हैं। ईद उल फितर के दूसरे रोज कल के मेज़बान आज के मेहमान बनेंगे। ख़वातीन घर आए मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए मीठे के साथ साथ अनवाउ अक़साम के पकवानों की तैयारी में मसरूफ़ हैं। नौजवानों ने ईद के दूसरे रोज पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया है। बच्चे पार्क में मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं तो ख़वातीन भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना चुकी हैं। और हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम शहरियों और अफगान शहरियत कार्ड रखने वालों को दी जाने वाली दूसरी मोहलत भी खत्म हो चुकी है। हुकूमत ने गैर कानूनी अफगान शहरियों को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। अब मुतलका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 8,85,902 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात चौधरी अरमग़ान सुबहानी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं और मुल्क की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अकरम गुजर की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ईद मनाने को एक यादगार लम्हा करार दिया। उन्होंने सऊदी अरब को पाकिस्तान का दूसरा घर करार देते हुए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और कारकुनान के अलावा दीगर सियासी जमातों, नुमाइंदों और साबिका वफाकी वजीर चौधरी शहबाज अहमद ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शेखुपुरा का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। शेखुपुरा की इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ है। आज भी ईद वाले दिन मुझे शेखुपुर आने का इत्तेफाक हुआ और मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितनी सफाई और जितने बेहतर अरेंजमेंट्स मैंने इस ईद पे देखे हैं अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखे, और इसके लिए मैं ज़रूर शाबाश और मुबारकबाद देना चाहती हूँ उस्मान और मुनीफ दोनों को। हार्ड वर्किंग यंग बॉयज़ हैं एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेरा सुथरा पंजाब के हवाले से जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको भी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह ताला ये सुथरा पंजाब जो है एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से भी और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए भी जो चेंज ला रहा है, ये इस जगह को मुझे हमेशा गुजरती रही हूँ मैं यहाँ से गुजर नहीं सकते थे आप। इट वॉज इम्पॉसिबल कि आप यहाँ से गुजर सकें। इस वक्त इतना नॉर्मल जो है वो यहाँ पर माहौल है, वो गंदगी, वो बदबू नहीं है जिसके ऊपर यहाँ से लोग गुजर नहीं पाते थे। सो थम्स अप, वेल डन। और नाजरीन, म्यांमार में हौलनाक जल्जले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हलाकतों की तादाद अब तक 2000 से तजावुज कर चुकी है। 3900 से जायद अफराद जख्मी जबकि सैकड़ों ताहाल लापता हैं। तबाहकुन जल्जले के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने म्यांमार के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में तबाहकुन जल्जले में कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़ल्ज़ला मुतासरीन की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना किया जाएगा। गजा पर इस्राइली फोर्सेस की जारहियत का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर के तीसरे रोज़ गजा पर बमबारी में 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में घर पर बमबारी से पूरा मकान तबाह हो गया, जिसमें सहाफ़ी मोहम्मद सालेह, उनकी अहलिया और 3 बच्चे शहीद हो गए। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर इस्राइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 12 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इस्राइली फ़ौज ने जनूबी गजा के शहर रफ़ा को फौरी खाली करने का हुक्म दिया है। इस्राइली फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक गजा के तमाम रिहायशियों को जो रफ़ा के इलाकों अन-नसर और अश-शवेका में मौजूद हैं फौरी तौर पर अपने इलाके खाली करने को कहा गया है। रफ़ा के शहरियों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अल-मुआसी के पनाहगाहों में मुंतकिल हो जाएं।
और लबनान की बात करेंगे, जहां इसराइल की ताज़ा बमबारी में 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत में एक इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 3 लबनानी जाँ बहक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के रुकन को निशाना बनाया गया। लबनानी सदर ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइली हमले लबनान के खिलाफ इसराइली इरादों की खतरनाक वार्निंग हैं। आलमी बरादरी लबनान की मुकम्मल इलाकाई खुद मुख्तारी के हक़ की हिमायत करे। अमरीकी फ़ौज ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर मज़ीद फ़ज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत सना और सादा में मुख्तलिफ इलाकों पर 15 से ज़ायद हमले किए गए हैं। हमलों में हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल अल-दलीमी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अल अरबिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाई हमलों ने अल-दलीमी अड्डे पर हौसियों के हथियारों के ज़ख़ीरों को निशाना बनाया। हौसी मीडिया का कहना है कि अमरीकी बमबारी ने दारुल हुकूमत सना को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक सना के ऊपर अमरीकी तैयारों की मुसलसल परवाज जारी है। शहर का एक बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक यमन के हौसियों की जानिब से जहाज़ों पर हमले नहीं रुकते, बमबारी जारी रहेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। आयतुल्लाह खामेनाई ने तेहरान में ईद के इज्तिमा से खिताब में कहा कि अमेरिका ने हमला करने की जुर्रत की तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि अमेरिका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम ऐसी किसी भी सूरत हाल से खुद ही निमट लेंगे। यूनान में हालिया मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मशहूर सियाहती जजीरा पारोस बारिश से शदीद मुतासर हुआ है। शदीद बारिश की जद में आने वाले सैलाब ने यूनान में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। पारोस में मूसलाधार बारिश गाड़ियों को बहाकर समंदर में ले गई। शदीद मौसम की वजह से पारोस की शाहराहों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हो गई। मुतासरा इलाके के रहायशियों को गाड़ियों के सफर पर पाबंदी से आगाह कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात FC बलूचिस्तान के जांबाजों ने पूरी कौम को ईद पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उनका कहना है कि ईद का त्यौहार अपने अजीज़ो अकारिब के साथ मनाया जाता है, लेकिन हम इस पुरमुसरत मौके पर अपने वतन की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, दुश्मन के बुज़दिलाना अज़ाइम खाक में मिला देंगे। ईद एक ऐसा खुशी का त्यौहार होता है जो हर शख्स अजीज़ व अकारिब के साथ मनाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हम अपने वतन अजीज़ की सरहदों के मुहाफ़िज़ इसको अपना फ़ख्र समझते हैं कि ये ख़ास दिन भी मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया जाए। हम फ़ख्र से यहाँ खड़े हैं ताकि हमारे मुल्क के बशिंदे अमन व अमान की हवा में सुख का सांस ले सकें और अपनी खुशियाँ बिला खौफ मना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी कौम बाहिफाजत अपने घरों में ईद मना रही है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी फ़ौज मुल्क व कौम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार खड़ी है। मैं पाकिस्तानी कौम को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इंशाअल्लाह इसी तरह जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तानी कौम और मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। FC बलूचिस्तान नाथ की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद पाकिस्तान के लिए खुशियाँ, अमन और खुशहाली का बहस बने। हमारी ये खुशियाँ शोहदा, गाजियों और उनके अहले खाना के साथ हैं कि जिनकी बदौलत हम ये ईद मना रहे हैं। आज के सुनहरे दिन पर पूरी कौम को ईद मुबारक कहता हूँ कि हम अपनी कौम और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं और दुश्मन के बुज़दिलाना और नापाक इरादों को हाथ खिला देंगे। हम दुआ गो हैं कि आज के दिन की बरकत से आने वाला वक्त हमारे वतन के लिए खुशहाली और अमन का बायस बने। हम अपने वतन के दिफा के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह हमेशा इसकी हिफाजत करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद पाकिस्तान में खुशियाँ, अमन और खुशहाली लेकर आए। हमारी ये खुशियाँ शुहदा, गाजियों और उनके अहले खाना के नाम है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम सुकून से ईद मना रहे हैं। मैं आज के सुनहरी दिन पर सबसे पहले अपनी तमाम कौम को ईद मुबारक कहता हूँ और साथ में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे हौसले बुलंद हैं। हम हरदम इस बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं दुआ गो हूँ कि हमारा प्यारा मुल्क तो इस दहशतगर्दी के फितने से जल्द आज़ाद होगा।
عید کے موقع پر شہداء کے لواحقین نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے قوم کے لیے اپنے پیاروں کو سوگوار چھوڑ کر جانیں نچھاور کیں۔ عید کے موقع پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت جڑی ہے یہ اللہ پاک کسی کہہ دیندا اسی نصیباں والے ہیں کہ جدائی دا سب نوں دے گا بہت زیادہ ماشاءاللہ ساڈے واسطے اتنا لائق بچہ نہیں جمع۔ میرا بیٹا رفان علی عید سے آندا سیگا تے ساڈی بڑی اچھی گزرਦੀ ਸੀਗੀ ایکچولی نے ہونا نہیں ساڈی عید جڑی ہے بڑی ادھوری گزرنی ہے ਉਹਦੇ بغیر۔ میرے بابا بہت پیارے تھے، میں انہیں بہت مس کرتا ہوں، وہ بہت اچھے تھے۔ جب ان کی کال آتی تھی میرے بابا کی تو وہ کہتے تھے کہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے اور ماما کو تنگ نہیں کرنا۔ ہر سال عید آتی ہے لیکن اس سال ہماری عید ادھوری گزرے گی کیونکہ ہمارے بابا اس سال نہیں ہے۔ اپنے بابا کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہ میرا بیٹا تھا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا خاتمہ اسی انداز میں لکھا ہوا تھا جس دن سے وہ پیدا ہوا تھا۔ پچھلی لاسٹ عید گزری ہے نا تو اس وقت آرمی میں ٹریننگ میں تھا مردان میں۔ اس عید کے اوپر ندیم عباس کی کمی ایک مجھے نہیں اب تو پورے ہمارے گاؤں کے سب کو ہی محسوس ہوگی۔ سلیوٹ ہے میری طرف سے پاکستان آرمی کو اور تمام ہمارے ملک کے جتنے بھی نگہبان ہیں ان سب کو۔ ماشاءاللہ جڑا میرا بچہ جتنی بھی کیتی سو بہادری نہ رہا اور بچپن بھی بہت اچھا رہا، بہادری نہ لڑیا، ملک پاکستان واسطے اگر لڑیا شہادت تھی موت شہادت نال گیا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے بچے ساریاں ماں دے۔ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ہمیں زندگی میں ہر مقام پر اپنے بھائی کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ عید کے ساتھ بھائی کی ہماری بہت زیادہ محبت ہیں۔ جب بھی عید آتی تھی تو بھائی ہم لوگوں کو باہر گھمانے کے لیے لے کے جاتا تھا اور بہت ساری ہم لوگوں نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے اور ہماری پوری زندگی کے لیے یادداشت رہ گئی ہیں۔ عید کی جو موت ہے وہ کام کی حیات ہے۔ عید کے اس خوشی کے موقع پر جو دکھ ہے وہاں خوشی بھی ہے کہ شہادت کا رتبہ ہر انسان کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ یہ رتبہ صرف اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے میرے میاں کو شہادت کے رتبہ دے کر انہیں ممتاز کر دیا اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جب بھی عید آتی ہے تو مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں کیونکہ میں دوسروں کے بچوں کے بابا کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو وہ مجھے جب بھی عید پہ آتے تھے وہ تو بہت سارے کھلونے اور مجھے ہر جگہ گھمانے لے کے جاتے تھے۔ بڑے بچے کی سونی موت ہوئی ہے اپنے خاندان واسطے اپنے علاقے واسطے اس بہت بڑا کچھ کی نیرا سے جو مجھ کر کے مڑ کر نکھڑ گیا ہمارا صاحب تو میں کر سکیں صاحب اپنے مڑ کر نوڑی گھوم گئے۔ اور ناظرین، بھارتی ریاست گجرات کے مہسانہ ضلع میں پیر کی شام تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں خاتون پائلٹ زخمی ہو گئی۔ حادثے میں زخمی ٹرینی پائلٹ کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سنگل انجن والا طیارہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر مہسانہ شہر کے قریب اچارپی گاؤں میں ایک کھیت میں گر کر تباہ ہوا۔ بھارت میں طیارے گرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی اسی طرح کے حادثات ہو چکے ہیں۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جانب بھارت F-35 طیارے خریدنے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف تربیتی طیارے سنبھالے نہیں جاتے۔ رواں ماہ کی 7 تاریخ کو ایک ہی دن میں 2 بھارتی طیارے گر کر تباہ ہو گئے جن میں ایک لڑاکا طیارہ تھا۔ بھارتی فوج میں فضائی حادثے معمول بن چکے ہیں۔ بھارتی فضائیہ خود اپنے لیے اڑتا پھرتا شمشان گھاٹ بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 30 برس کے دوران بھارتی فضائیہ کے 534 چھوٹے بڑے طیارے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان حادثات میں مجموعی طور پر 152 بھارتی پائلٹ ہلاک ہوئے۔ صرف گزشتہ 5 برس میں 45 فضائی حادثات ہو چکے ہیں۔ واپس آئیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے عید الفطر کے احوال سے۔ ملتان میں عید الفطر کے دوسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے مٹھائیوں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ اور حضرت شاہ رکن عالم کے مزارات پر حاضری بھی دے رہے ہیں لوگ۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں فرحان مرزا سے۔ فرحان مرزا، بتائیے گا اہلیان ملتان کی عید الفطر کس طرح سے گزر رہی ہے؟ جی شکریہ۔ شہر اولیا میں بھی عید الفطر کے رنگ ہر طرف بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اہلیان ملتان اپنی عید بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ اور میٹھی عید اور میٹھا نہ ہو یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے مٹھائیوں کی دکانوں کا رخ کر لیا اور ملتان کی مٹھائیاں اپنے ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے پاکستان بھر میں مشہور ہیں۔
मुल्तान की ये जो मिठाइयाँ, हलवे और केक्स जो हैं ये खालिस देसी घी में तैयार किए जाते हैं। यही वजह है कि जो शहरी जो है ना सिर्फ वो अपने लिए ये मिठाइयाँ और हलवे खरीद रहे हैं बल्कि अपने अजीज़ों अकारिब के लिए पाकिस्तान भर में भिजवा रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्तान अपनी सकाफत और अपने मज़ारात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि आज एहलियान मुल्तान और जनूबी पंजाब भर से अकीदतमंद जो हैं वो हज़रत शाहरुख आलम और हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर फातिहा खानी कर रहे हैं। लोगों की एक खासी बड़ी तादाद है जो कि हमें नज़र आ रही है यहाँ पर कला कोना कासिम बाग पर। साथ ही पार्क्स जो है वहाँ पर बच्चे झूले ले रहे हैं, जो फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने कैदियों और हॉस्पिटल में जो मौजूद जो मरीज़ जो थे उनमें ईदी और तहफ़ तकसीम की है। इसी तरह अगर हम बात करें सफाई की तो सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो डिवीज़न भर की जो तहसीलें और यूनियन काउंसिल थी वहाँ पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन किया गया है और इस सफाई ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ये है कि शहरियों को इस ईद उल फितर के मौके पर साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल मुयसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया फरहान। कहते हैं कि मीठी ईद का मज़ा तो मीठे में है और यही वजह है कि ईद उल फितर पर मिठाइयों और केक्स की खरीदारी भी उरूज पर होती है। इसी बारे में तफसील से आगाह कर रही हैं वर्दा सलीम। ईद का चांद देखते ही मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है और जब मीठी ईद पर मुबारकबाद की बात हो तो मीठा ना हो ये कैसे मुमकिन है। यही वजह है कि ईद के पहले दिन अजीजों अकारिब के यहाँ जाते वक्त मिठाइयों और केक्स की खरीदारी की जाती है। ईद के दिनों में जहाँ बाजारों में गहमा गहमी है वहीं लाहौर के स्वीट शॉप्स में भी खरीदारों का रश है। ये जो ईद है ये तो खुशी का दिन है और खुशी उसी वक्त ही होती है जब आपस में मिल के जो है वो रिश्तेदारों के साथ और अपनों के साथ मिल इसको मनाया जाए। ईद का पहला दिन है तो हम यहाँ से केक लेने आए हैं। ईद के मौके पर अजीजों अकारिब के यहाँ मिठाई ईद केक्स ले जाने की रवायत भी फरोग पा रही है। ऐसे में केक के मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ साथ उसकी आराइश पर भी तवज्जो दी जाती है। छोटी ईद मीठे के बगैर तो होती नहीं, तो इसलिए जहाँ पे भी जाएंगे मीठा लेके जाएंगे। फ्योनिया वगैरह और स्वीट वगैरह लेकर जाते हैं। मीठी ईद को जो है ना मज़ा दुबाला करते हैं। ईद उल फितर के मौके पर सवैयों और फ्योनियों को भी मीठी सौगात के तौर पर पसंद किया जाता है और रिश्तेदारों को फ्योनियों का तोहफा पेश करना भी एक पुरानी रवायत है। जिंदा दिलाने लाहौर सवैयों और फ्योनियों की खरीदारी के दौरान इसके जायके के साथ साथ इसकी दिलकश पैकिंग पर भी खुसूसी तवज्जो देते हैं। ईद की खुशियों को मजीद दुबाला करने के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर अजीजों अकारिब के लिए मीठे मीठे तहाइफ लेके जा रहे हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी सियाहती मकामात मलिका कोहसार मरी, अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर में मुल्क भर से सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील जानते हैं यासिर वकार शाह से। मलिका कोहसार मरी, माल रोड, पत्रियाटा और गलियात के तमाम तफरी मकामात पर गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है जिससे इन मकामात की रौनक और भी बढ़ गई है। खास तौर पर पत्रियाटा के मकाम पर केबल कार चेयर लिफ्ट जो 1 माह के मेंटेनेंस वर्क के बाद दोबारा खोल दी गई है सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सयाह खूब इंजॉय कर रहे हैं। चेयर लिफ्ट पर सवार होकर खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ में बहुत सर्दी है, बड़ा प्यारा मौसम है और हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें यहाँ के। मेरा नाम मिराल है, मैं लाहौर से आई हूँ और यहाँ पर हम ईद मनाने आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नीलम, जेलम, कोहाला, अयूबिया टनल और खानसपुर के मकामात पर भी सयाह सर मौसम का मजा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शराजी की हदायत पर ईद उल फितर के हवाले से एक जामिया और मरबूत ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है ताकि सयाहों की आमदोरफ्त को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सके। मलिका कोहसार मरी गाड़ियों का रिकॉर्ड रश है। अब तक 3000 गाड़ियां मरी दाखिल हो चुकी हैं जिससे सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से सयाहों की सहूलत और रहनुमाई के लिए फैसिलिटेशन सेंटर भी फाल कर दिए हैं ताकि सयाहों को किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना हो। यासिर वकार शाह, पीटीवी न्यूज़, मरी। नाज़रीन, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, ईद उल फितर पर मिठाइयों और केक की मांग भी बढ़ जाती है। रहीम यार खान में मिठाई की दुकानों और बेकरियों से शहरी अपने घर और अजीज़ों अकारिब के लिए मिठाइयाँ और केक्स खरीद रहे हैं। और इसके अलावा ननकाना साहब की बात करें तो वहाँ पर भी शहरियों ने ईद के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है जहाँ वो अपने प्यारों के साथ ईद के पुरमसरत लम्हात गुजार कर इन्हें यादगार बना रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद माविया। जी जावेद। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और ननकाना साहब में मौसम गर्म होने के बावजूद
लोगों की बड़ी तादाद ने अपनी फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ तफरी मुकामात का रुख किया है, जहाँ वो अपने अपने अंदाज में ईद के पुरमसरत लम्हात को अपने प्यारों के साथ गुजार कर इन्हें यादगार बना रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी जिद की है कि हमने बाबा पार्क में जाना है, तो आज हम उसको पार्क में लेके आए हैं, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करें, खूब मस्ती करें, खाएं पिएं, झूले लें और इससे माँ बाप को भी खुशी होती है। तफरी मुकामात पर आए हुए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश हैं और वो मुख्तलिफ अक़साम के झूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ चटपटी अशिया के भी खूब मज़े ले रहे हैं। लेकिन मौसम गर्म होने की वजह से हमने फिर भी इंजॉय किया है, वहाँ पे बच्चों ने भी इंजॉय किया। मुझे 2000 से ज़्यादा ईदी मिली है, मैंने इसके झूले लिए। घर पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, पार्क आए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा, पार्क लोग अपने प्यारों के साथ गुजरे ईद के यादगार लम्हात को तस्वीर और सेल्फियाँ बनाकर कैमरे की आंख में भी महफूज कर रहे हैं। जी शुक्रिया जावेद आपका। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रहायशगाह आए और उनके अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रूह के इसाले स्वाब के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने शहीद की वालदा, अहलिया, मासूम बेटी और दीगर अहल खाना से मुलाकात में शहीद कैप्टन की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद की वालदा ने बेटे को याद करते हुए आबदीदा हो गईं और कहा कि हमारी सोच अली से शुरू होती है और अली पर ख़त्म होती थी। मासूम बेटी वालिद की तस्वीर को चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। उन्होंने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना के साथ वक्त गुजारा और शहीद की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि शहीद कैप्टन अली कौम का हीरो है और उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद कैप्टन ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन अली की कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मीठी ईद की मीठी खुशियां, ईद उल फितर पर मिठाइयों और केक्स की मांग बढ़ जाती है। रहीम यार खान में मिठाई की दुकानों और बेकरियों से शहरी अपने घर और अजीज़ व अकारिब के लिए मिठाइयाँ और केक खरीद रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद। जी, मीठी ईद पर मीठे की डिमांड भी बढ़ जाती है। रहीम यार खान की बेकरियों पर शहरियों का रश देखने में आ रहा है। मीठी ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए मिठाइयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत केक की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी अपने अजीज़ों अकारब के घरों में मिठाई और केक बतौर तोहफ़ा देने के लिए ख़रीद रहे हैं। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। दोस्तों को, अजीज़ों अकारब को गिफ्ट देते हैं मिठाइयों का, केक, इसलिए आए हैं ईद पे। मीठी ईद का एक तोहफ़ा होता है जो हम अपने अजीज़ व अकारब को मनाते भी हैं और खाते भी हैं और खुश भी होते हैं। मीठे गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, केक देते हैं और ख़ुद भी अपने बच्चों के लिए यहाँ से खरीद के जाते हैं। मिठाइयों में शहरी रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, मोतीचूर के लड्डू, सोहन हलवा, जबकि केक में पाइनएप्पल केक, ड्राई फ्रूट केक, चॉकलेट केक और क्रीम केक खरीद रहे हैं। मीठी ईद के ऊपर जो है हमारी जो स्वीट्स की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से जो है हम उसमें अपनी जो ईद का जो स्टॉक होता है, जैसे केक हो गया, मिठाई वगैरह हो गई, स्वीट्स वगैरह हो गई, तो उनको जो है हम वाफर मिकदार में बनाते हैं। छोटे हों या बड़े, ईद के इस पुरमसरत मौके पर मिठाई और केक खरीद कर मीठी ईद का मज़ा दुबाला करने में मसरूफ़ है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। इंसान तीन किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाअल्लाह ऐसा जल्द होगा। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، عید کی تعطیلات کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے دوران گرم رہے گا۔ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران زیادہ تر حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ اس دوران وسطی اور جنوبی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج عید کے دوسرے روز بھی میدانی علاقوں میں تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ شام اور رات کے اوقات میں شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مغربی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل تربت شور 41، لسبیلا ٹھٹھا، شہید بے نظیر آباد اور ٹنڈو جام میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ الصبح 3 بجے سے ہملٹن میں شروع ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم نے میچ کی تیاری کے لیے سیڈن پارک گراؤنڈ میں پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی کھیل کے تینوں شعبوں میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر توجہ دی۔ کرکٹرز نے وارم اپ ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ نیپیر میں پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 73 رن سے کامیابی سمیٹی تھی۔ پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے سے قبل نیوزی لینڈ کو بڑا دھچکا۔ ان فارم بلے باز مارک چیپمن انجری کے باعث میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق مارک چیپمن نیپیر میں پہلے میچ کے دوران فیلڈنگ ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے جس کے باعث وہ دوسرا ون ڈے نہیں کھیل سکیں گے۔ بلے باز کے MRI سکین میں گریڈ 1 ٹیئر کی نشاندہی ہوئی ہے۔ انہیں ری ہیب کے لیے مختصر وقت درکار ہے۔ بائیں ہاتھ کے بیٹر چیپمن نے پہلے ون ڈے میچ میں 132 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ الصبح 3 بجے سے ہملٹن میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم نے قوم اور پوری امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے عید الفطر کی نماز ہملٹن میں ادا کی۔ کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر فینس نے قومی کرکٹرز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ کرکٹرز نے قوم کے نام پیغامات میں کہا کہ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خود بھی عید منائیں اور دوسروں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ شائقین کرکٹ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے کو تیار ہے۔ PSL 10ویں ایڈیشن کے آغاز میں 10 روز باقی رہ گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے PSL 10 کے آفیشیل اینتھم کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے۔ ترانے میں معروف گلوکار علی ظفر اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ ابرار الحق سمیت ابھرتی ہوئی گلوکارہ نتاشا بیگ اور نوجوان ریپر طلحہ انجم بھی فن کا مظاہرہ کریں گے۔ آفیشیل ترانہ بہت جلد ریلیز کیا جائے گا۔ PSL 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہو رہا تھا۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کے کپتان گریگ بریتھویٹ عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اوپننگ بلے باز بریتھویٹ کو 2021 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان تعینات کیا گیا تھا۔ بریتھویٹ نے رواں سال جون جولائی میں آسٹریلیا کے خلاف شیڈیول ہوم سیریز سے قبل استعفیٰ دیا ہے تاکہ نئی قیادت کو وقت مل سکے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے نئے قائد کا اعلان آنے والے ہفتوں میں کیا جائے گا۔ کرکٹ ویسٹ انڈیز کے مطابق بریتھویٹ 100 ٹیسٹ کھیلنے سے 2 میچز کی دوری پر ہیں۔ بریتھویٹ کپتانی کی اضافی ذمہ داری کے بغیر اپنی بیٹنگ پر مکمل توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے عہدے سے علیحدہ ہوئے۔ برازیل کے میکائیلی سول نے 8ویں مرتبہ بگ گیئر کائٹ ورلڈ کپ ٹائٹل اپنا نام کر لیا ہے۔ فرانس میں ہونے والے بگ گیئر کائٹ ورلڈ کپ ایونٹ میں 24 مرد اور 12 خواتین نے حصہ لیا۔ میکائیلی سول نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ مجموعی برتری کے ساتھ ٹائٹل بھی اپنے نام کیا۔ مردوں کے ایونٹ میں اٹلی کے آندریا پرنسپی پہلے نمبر پر رہے تاہم اسپین کے لورینزو کاساتی دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے مجموعی برتری کے ساتھ ٹائٹل کے حقدار قرار پائے۔
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सेल्टा और लास पाल्मास के दरमियान मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। वीगो में खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात में एल्फोन गोंजालेज ने गोल करके मेजबान सेल्टा को बरतरी दिलाई। दूसरे हाफ के तीसरे मिनट में लास पाल्मास के अल्बर्टो मोलेरो ने फुटबॉल को जाल की राह दिखाकर मुकाबला बराबर कर दिया। पॉइंट्स टेबल पर सेल्टा की टीम 40 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है, जबकि लास पाल्मास रेलीगेशन के खतरे से 2-4 है। बार्सिलोना 66 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हालांड की टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ FA कप सेमीफाइनल में शिरकत मशकूक हो गई है। सिटी के नॉर्वेजियन स्ट्राइकर गुज़श्ता हफ्ते बॉर्नमाउथ के खिलाफ FA कप क्वार्टर फाइनल में टखने की इंजरी का शिकार हुए थे। हॉलैंड मैच के 61वें मिनट में इंजरी के बायस ग्राउंड छोड़कर चले गए थे। मैच में मैनचेस्टर सिटी ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी थी। प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी के मुताबिक फुटबॉलर के चोट की नोयत के मुकम्मल तयन के लिए मजीद टेस्ट किए जाएंगे। हॉलैंड ने रवां सीजन में अब तक 28 लीग गेम्स में 21 गोल स्कोर किए हैं। अमेरिका की कैटी वॉलीनेट्स चार्ल्सटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना में खेले जा रहे WTA 500 इवेंट के पहले राउंड के मैच में मकामी खिलाड़ी कैटी वॉलीनेट्स ने कनाडा की कैथरीन सीबो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। वॉलीनेट्स ने सीबो को 1 घंटे से भी कम वक्त में 6-0 और 6-0 से मात दी। Wonderful. Another. So sick the right shots. She dominated from start to finish. खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।